या सबको हो रहा है? हाँ जनरली कुछ इशू है, तो हो रहा है हमने कैसे? ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम वो 2G वाले पे स्विच हो जाएं तो प्रॉब्लम नहीं हो रही। 5G वाला बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, कुछ है मसला। अच्छा, आई एम जस्ट ऑन वाईफाई, आई एम नॉट ऑन डेटा। ओके, हाँ हाँ, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा। डेटा में भी दो है ना, दो चैनल्स उन्होंने बनाए हुए हैं। खैर नहीं, हाँ मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, यू कैन स्टार्ट। ऑलराइट, ओके। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑलराइट, तो आज का हमारा जो लास्ट नाम एंड द लास्ट नाम बिफोर जो है रमजान, बिफोर वी टेक अ ब्रेक, इज असमद। असमद is a beautiful name of Allah subhanahu wa ta'ala. It has many meanings, बहुत सारे meanings हैं इसके, और of the meanings is the eternal, the satisfier of need, the master, the perfect in all attributes. और इसकी हम बात करते हैं। The first thing is make Surah Al-Ikhlas a part of your daily life. तो आप लोगों को देखें, हदीस में देखें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतों में कब सूरत अल-काफिरून और सूरत अल-इखलास पढ़ा करते थे, किस किस मौके पर सूरत अल-काफिरून और सूरत अल-इखलास को साथ पढ़ा करते थे, ये चीज़ देखें। फिर मॉर्निंग इवनिंग सोने से पहले जो हमके अज़कार हैं उसमें सूरत अल-इखलास पढ़ें। उसके अलावा when you recite Surah Al-Ikhlas 10 times in a day, तो 10 times in one go, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो Allah Subhanahu wa Ta'ala builds a house for you, a palace for you in Jannah, and it's such a good deal, such a good property deal. हम लोग पूरी जिंदगी पैसे जमा करते रह जाते हैं दुनिया में घर बनाने के लिए, and making a house in Jannah is so easy, subhanallah. फिर this loving this surah is a means to get Allah's love. ये हदीस हम सबको पता है कि there was a sahabi who used to recite Surah Al-Ikhlas in all his rakas. After he recited Quran, he would recite Surah Al-Ikhlas, and the sahabas talked about it to Rasulullah sallam कि ये, you know, he recites Surah Al-Ikhlas after every salah when he leads us in salah. And Rasulullah sallam asked him कि why do you do that? So the man said, because I love this surah, because it's all about Allah subhanahu wa ta'ala's attributes and about Allah subhanahu wa ta'ala. So Rasulullah informed him that because of your love for the surah, Allah loves you, and he was given the basharat of Jannah. So let us love this surah. We also love this surah, right? So we hope that Allah loves us too. Next point is make your intentions pure. Be sincere in your worship and in all your actions. जब मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ for sincerity, I use this name Al-Quddus and As-Samad when I ask for sincerity for myself. This graphic was shared by Nadia in our group. And the conditions for acceptable deeds are ikhlas, number 1. अल्लाह के खातिर, अगर हमने अल्लाह की खातिर कोई काम नहीं किया तो फिर हमें अल्लाह से रिवॉर्ड कैसे मिलेगा उसका? जिसकी खातिर किया उसी से रिवॉर्ड लेना फिर जाके। तो इखलास इज नंबर 1। और फिर इत्तिबा, द यू नो फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरीके से हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत करना सिखाई, उसके अलावा हमें खुद क्रिएटिव नहीं होना है इबादत में। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चल के, और इखलास अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खालिस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए काम करना है हमें। इखलास का मतलब है कि मुझे अल्लाह का प्लेजर चाहिए, अल्लाह का प्रेज चाहिए, अल्लाह की अप्रिसिएशन चाहिए, अल्लाह से रिवॉर्ड चाहिए और लोगों से नहीं। Fruits of ikhlas: multiplication of rewards, accepted deeds, protection from sins, protection from shaitan, firmness यानी कि जो इस्तकामत होती है, love for Allah and love of creation. Allah Ta'ala puts our love in people's hearts. Even the angels love us when we have a class. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ameen ya Rabb. इखलास के बारे में जल्दी से मैं बात कर लूँ रमदान के बारे में। अच्छा, there was a wealthy man who was building a masjid and overseeing the construction, and he used to do this, he wanted to do this deed for the sake of Allah, and he did not want any contribution in it. He didn't want to take any help in terms of donations or money of any sort. He wanted to earn his reward from Allah. He brought his workforce and the work was underway. While the construction was going on, there was an old lady who used to pass by. She was a poor woman, and she wanted to take part in the good deed. She didn't have much, so she brought a bucket. To give to the workmen so that they can carry things from one point to another. तो
The only thing she could give in donation was a bucket. And the work continues. When the project was near its completion, the founder of the masjid saw a dream that he's in Jannah and he's shown 2 palaces. And he's told that this one is yours for your contribution in the masjid. And he was like, my contribution? This is entirely my project. How is this my contribution? So he got up and he wakes up and he goes to inquire whether anyone has given any money for the masjid. They all said, no, no one was there. Nobody came for any donations until someone remembered the bucket. So the man takes the bucket and off he goes to find the old woman's house. And he politely says, please, auntie, take your bucket. I intend to build this masjid without any contributions. So the woman says, it's just a bucket. May I ask you why you're returning it? So the man tells her the dream. She says, Wallahi, I saw the exact same dream that I was given a palace as a reward for my contribution in the masjid. So उस आदमी की पूरा मस्जिद बनवाने की और इस old lady की एक बाल्टी एक bucket देने की अल्लाह ताला ने reward को बिल्कुल एक जितना कर दिया. And the woman says, I'm in need of that reward. I cannot take this bucket back. Jazakum Allah khair. She refused to take that bucket. Such is Allah Al-Kareem. He multiplies reward for your sincerity. Imagine a palace in Jannah for the price of a bucket, just for your sincerity. Abu Huraira reported, the Prophet ﷺ said, every good deed of Adam's son is for him, except fasting. Fasting is for me, and I shall reward the fasting person for it. That is why we say, when we say Ramadan Kareem, that is the meaning of Allah Al-Kareem. Inshallah ta'ala, when we do this name as well, तो आप लोग याद रखिएगा कि अल्लाह अल करीम का क्या मतलब है. हाउ इज अल्लाह अल जनरस इन द सेंस कि हम एक अच्छा काम करते हैं अल्लाह उसके 10 हसनात हमें देता है, राइट. और फास्टिंग की क्या रिवॉर्ड है हमें नहीं पता, अल्लाह ताला ने हमें बताया ही नहीं कि, बट हमें फास्टिंग का रिवॉर्ड तो नहीं पता, मगर हमें ये पता है कि अल्लाह अल करीम है. डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल वी फास्ट, हाउ मच sincerity we have, we hope for the best reward from Allah Al-Kareem. All good deeds we do are multiplied in Ramadan. तो दूसरा एक रमजान की बात मैं आप लोगों से और करना चाहती थी कि मैंने सिस्टर वफा की क्लास अटेंड करी थी मंडे को, एंड शी वाज सेइंग कि थिंक ऑफ रमजान एज योर फाइनल एग्जाम्स आफ्टर द होल ईयर्स प्रिपरेशन. और हम यही तो करते रहे पूरे साल, हम अल्लाह के को जानते रहे, हम प्रिपेयर करते रहे अपना दिल, हम रमजान के लिए तो प्रिपेयर करते रहे. slowly trying to get closer to Allah, slowly introducing good deeds into our lives with the help of each other and reminders. We have been learning the names of Allah subhanahu wa ta'ala for all this year. और हमें अब ये देखना है कि we're going to worship Allah with quality. क्वांटिटी की फिक्र नहीं करनी है. क्वांटिटी अल्लाह ताला क्वांटिटी भी बढ़ा देगा. जब हम जितनी sincerely Allah की इबादत करेंगे तो Allah Ta'ala will give us stamina and put barakah in our time. But don't burn out in the first week. Don't do any mindless ibadah. Just put your heart and soul in Ramadan, and your body will follow. And after the final exam, we never stay on the same level. हमारा level इंशाल्लाह next जब हम रमजान के बाद अल्लाह की बात करेंगे तो हमारा लेवल और बढ़ जाना चाहिए ना. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट द क्विज एक दो चीजें और थी. एक तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 लिस्ट अपनी बनाइएगा रमजान गोल्स की. एक वो बेसिक चीजें जो आप लोगों को करनी ही करनी है, जैसे कि उसमें मैंने ये नहीं बताया था कि क्या क्या चीजें उसमें ऐड करें. जैसे कि आपकी सलाह, ऐसा नहीं हो कि रोजे रख के इतना थक गए कि सलाह पे आंख नहीं खुल रही है. तो नमाज आपको जरूर पढ़नी है और टाइम पे पढ़नी है. रोजे कोई भी नहीं छोड़ने हैं. इसमें तो ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना. चाहे वेदर यू हैव स्मॉल चिल्ड्रन, वेदर यू हैव अ फुल टाइम जॉब, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, आप किसी बीमार की तीमारदारी कर रहे हैं, कोई किसी भी सिचुएशन में ये चीजें तो नहीं छोड़नी है. दुआ नहीं छोड़नी है. जरूरी नहीं है कि हम एक मुसल्ले पे बैठकर और माहौल बना के दुआ करें. किसी सिचुएशन में भी दुआ करें. काम करते हुए, किचन में काम करते हुए दुआ करें. अज़कार अपने नहीं छोड़ने हैं. कुरान नहीं छोड़ना है. अगर आप एक पेज भी कुरान का पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा भी कुरान पढ़ सकते हैं, डू रीड कुरान एवरी डे. चैरिटी ज़कात हमें जरूर देनी है. It's over there, so I'll have to go there. Okay. चैरिटी हमें जरूर देनी है, अगर ज़कात के ऊपर से भी, और whatever we can give, थोड़ा बहुत भी, ठीक है. And make sure you have some challenging targets as well, something that you will push yourself to do, whether it's sending iftar to your neighbors, whether it's memorizing something from the Quran, whether it's some understanding something deeply or reflecting on something, or anything that you missed from the names of Allah subhanahu wa ta'ala.
और दूसरी चीज़ एक ये कि अगर आपकी कुछ चीज़ें रह भी जाएं, अपने जब गोल्स बनाए तब ये नहीं सोचें कि कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं भी कर सकी तो कोई बात नहीं, पुश योरसेल्फ। मगर अगर बाय द एंड ऑफ रमजान कुछ चीज़ें रह गई तो लुक एट इट पॉजिटिवली, अच्छी बात है ये कि कुछ चीज़ें रह गई, इसका मतलब है कि यू कैन कैरी दैट ओवर आफ्टर रमजान। रमजान के बाद भी हमने अल्लाह की इबादत तो नहीं छोड़नी है। अच्छा, एक चीज़, मेरी अम्मी एक स्टोरी सुनाएंगी just before we start the quiz. यम्मी ने मुझे स्टोरी सुनाई थी and I asked her to share with us. बिया है ना? थी तो I don't मैं know. एक मिनट चेक कर लेती हूँ। हाँ है ना, क्यों नहीं, मैं भी ऐसे कहती हूँ अनम्यूट करें। I do apologize for today, sisters. आज की जो technical difficulties जो हमें face करनी पड़ी, but it's qadar of Allah, right? Exactly. बिया को मैंने मैसेज तो किया है अनम्यूट करने का। बिया, हो सकता है पाकिस्तान में मगरिब का टाइम ना हो गया। ओह यस, हाँ हो सकता है, could be. अगर जवाब नहीं दे रही इसका मतलब है she's gone to pray. तो कोई बात नहीं, हम फिर क्विज स्टार्ट कर देते हैं और बिया को बोलेंगे कि बाद में वो आखिर में करना है। ठीक है, चलो थोड़ा सा मुझे टाइम और दे दीजिएगा। बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, हम सुनाएंगे। ये मुझे कोट बड़ा अच्छा लगा था, शेख आला सईद, I don't know if you've seen his videos on YouTube वगैरह. He says, have you ever wondered why we're happy in Ramadan? Because we do what we are created to do. And what are we created to do? We are created to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Because we're worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, because we're doing what we're created to do, we are happy in Ramadan. All right. Everybody's ready? हैंड रेज करने के लिए, माइक्स अनम्यूट करने के लिए रेडी हो जाएं सब। बिस्मिल्लाह। तो मेरे को रूल्स आप रिपीट कर दें एक बार कि हाउ वी विल हैव दिस क्विज, कि सब अपना हैंड रेज करेंगे, जिसको क्वेश्चन आता है वो हैंड रेज करेगा, फिर वी विल टेक द नेम जो कि आंसर करेगा। ठीक है ना? सही है। फिजा विल सी, जिसने सबसे पहले हैंड रेज किया होगा वो दे विल बी चोजन इंशाल्लाह। और जिसका जवाब नहीं आता होगा वो फिजा जवाब देगी। हाँ रियली? ओके। चलो बिस्मिल्लाह। The first question आप लोगों को पता ही है, why don't we do तस्बीह of Allah subhanahu wa ta'ala by repeating his names again and again? हम क्यों नहीं कहते या सलामों की तस्बीह, या हय्यु या क़य्यूम की तस्बीह, अल्लाह समद की तस्बीह क्यों नहीं पढ़ते हैं हम? Why is that? अर्शिया निदा खालिद। Okay. Yeah. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Yeah, we don't do tasbih because it is not from the Sunnah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam never taught us to do so. He has taught us to invoke by his names, not to do tasbih by his names. That's the reason I know. Yes, that's the answer. मरियम शाहिद भी कुछ कहना चाह रही हैं, उनका भी सुन लेते हैं बात। हाँ जी मरियम। जी, मैं भी यही कहने लगी थी कि कहा गया कि अल्लाह कहते हैं कि मुझे मेरे नामों से पुकारो, तो नाम से पुकारो का मतलब है कि मुझे बुलाओ और मुझसे मांगो मेरे नाम से। तो जो मांगना है वो जरूर हमें कहना चाहिए, लेकिन हम सुभान अल्लाह जैसे जैसे हम कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का नाम लेके उसकी बुजुर्गी बयान करते हैं। सिर्फ अल्लाह 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 नहीं कहते, हम बुजुर्गी बयान करते हैं। और अगर कोई दुआ है तो उसके प्यारे नामों से उसके को दुआ करके बुलाते हैं। तो ये भी हमें इसलिए तस्बीह अल्लाह 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 ये नहीं करना चाहिए। जो मांगना है, जो चीज आपको चाहिए तो वो मांगनी चाहिए। बिल्कुल। और हमें हमारे टीचर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इबादत करना सिखाया ना, कि किस तरीके से इबादत करें। हमें खुद से नहीं कि जो हम मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स। वालेकुम अस्सलाम अनीला। जज़ाकल्लाह खैर शीमा, वेरी अमेजिंग क्लास। अच्छा, मुझे ये कहना था कि कुछ तस्बीह तो हैं ना, जैसे 100 टाइम्स अल्लाहु अकबर, 100 टाइम्स सुभान अल्लाह, वो तो हम कर सकते हैं ना? हाँ, वो कर सकते हैं, मगर खाली सिर्फ अल्लाह का नाम ले लेकर के सिर्फ हम अल्लाह का नाम ले रहे हैं, तस्बीह पढ़, बिकॉज ये प्रैक्टिस है, दिस इज अ डिविएटेड प्रैक्टिस जो कि करी जाती है। लोगों को बताया भी जाता है कि या सलामो पढ़ो, फलाना बीमार हो गया तो, एंड इस तरह की चीजें होती है ना। तो ये नहीं, मगर दिस इज राइट व्हाट यू सेइंग, अल्लाह अकबर की तस्बीह तो हम करते हैं सोने से पहले, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, दिस इज नमाज के बाद की भी
तो this is very authentic, करना चाहिए हम सबको। इसमें कुछ नंबरिंग है जैसे 100 टाइम्स 200 जितना एक तो वो 23 वाली तो सुना है ना, वो 23 कह रही हूँ 33 हाँ, और 23 31 और 33 वो तो सुना है, मगर बाकी जो 100 टाइम्स 200 टाइम्स टाइम करते हैं वो भी ठीक है या इसमें कुछ अगर हिदायत? हदीस, हाँ, अगर हदीस में नहीं है कोई नंबर किसी चीज का तो फिर अपनी तरफ से ऐड नहीं करना चाहिए। फिर अनलिमिटेड आप अल्लाह अकबर बोलते रहे, अस्तगफार बोलते रहे, अस्तगफिरुल्लाह बोलते रहे, कोई उस पे नंबर नहीं लगाएं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, अब मुझे क्लियर हो गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Okay, next question. Okay, which ayah of Quran mentions tasbih, tahmeed and istighfar? तस्बीह, हम्द और इस्तिग़फ़ार किस आया में आया कुरान के? You all know it. सबको बताइए। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु काना तव्वाबा। जज़ाकल्लाह खैर। Who is this? Anila Najib? नहीं, आमना। Amna. Yes, Jazakallah khair. That's correct. Very good. This is from Surat Nasr. Then next question is Allah. Oh, sorry. This is the answer. Al-Mubin is the name of Allah, which means the clear and manifest. What else is referred to in the Quran as Al-Mubin, as Mubin or Al-Mubin? मरियम, कुरान, इसमें से 3 चीजें बता दें, कोई भी 3 चीजें जो मुबीन मरियम, अल्लाह ताला ने मेंशन कुरान। एक मिनट, एक मिनट, मरियम कुछ कहना, we are going by rules here, so you have to raise hand. Sorry. You want to answer. Just raise your hand or because I will call out your तो name. मरियम है सबसे ऊपर, मरियम असलम है गालिबन, सिर्फ मरियम लिखा हुआ है। जी मरियम अस्सलाम शाहिद वालेकुम। हाँ, जी मरियम अस्सलाम। मसलिम असलम है। कुरान को खुद भी कुरान मुबीन के तौर पे कहा गया है। कुरान के लिए मतलब खुद कुरान में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। Okay, good. वो 3 चीजें बता दो। ये सोचना पड़ेगा। अच्छा, किसी और को पता है 3 चीजें? मरियम सूरह मुल्क के बारे में भी सोचो कुछ। ट्रू। नादिया कुछ कहना चाह रही हैं और अनिला नजीब दोनों, पहले ऊपर नादिया हैं। Okay. नादिया नादिया? क्या शैतान को भी कहा गया कि खुला शैतान को कहा गया दुश्मन है। यस। और निशानियों के बारे में भी शायद ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि खुली निशानियां हैं या रोशन दलाइल। यस। मैसेज के बारे में अनिला भी निशानियां। अनिला भी है इन लाइन। दीहा बोलना चाह दुलालिम मुबीन है। दुलालिम मुबीन। हाँ यस, ये मेरी स्टूडेंट। All of these. इन सबको मैं इन सबके नाम लिख लूं फिर मैं, या 3 इनको बताने थे। 30% दे देते हैं इनको मार्क्स। चले 30% दे देते हैं। Okay, so all these things, Quran Mubin, Ithma Mubin, sin, a clear sin, Sultan Mubin, clear authority, Fawz Mubin, Fawz का क्या मतलब होता है? कामयाबी। 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 Right, Nadhir Mubin, clear warner, शैतान को अदुव मुबीन कहा है। दुलाल मुबीन। Exactly. ثوبان मुबीन, सिहर मुबीन, साहिर मुबीन, ये सब भी कुरान में आया है। इफ्को मुबीन। इफ्को मुबीन। इफ्को मुबीन, yes. Yeah, slander, clear slander. All right, next question. Which surah is known as Surah Al-Tawheed? मैं बता दूं, मरियम कह रही है। नहीं, अर्शिया। Okay, Arshia. Surah Al-Ikhlas? Yes, Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas used to be known as Surah Al-Tawheed
in the early generations. Surah Al-Ikhlas पर more common होता चला गया, but it was known as Surah Al-Tawheed. ये क्वेश्चन 4 था ना? I'm sure. हाँ 4 था 4. हाँ, this is question 4. शीमा सूरह अल काफिरून को भी तो इखलास कहते हैं ना? इखलास नहीं, सूरह अल काफिरून और पता नहीं उसमें भी तौहीद उसमें तौहीद को किसी और तरीके से बयान हुआ है और सूरह इखलास दोनों को इकट्ठा साथ साथ रखते हैं. यानी एक दफा मैंने पढ़ा था कहीं पे. हाँ, एक साथ कैसे रखने पता है? It's like इसको एक्सप्लेन करते हैं कि it's like ला इलाहा इल्लल्लाह. जैसे हम पहले वो करते हैं ना कि there is no other God except Allah. तो सूरह काफिरून is ला तअबुदून मा तअबुदून, sorry, ला अअबुदु मा तअबुदून. उसमें वो वाला पार्ट आ जाता है कि पहले हमने क्लीन कर दिया कि nobody else except Allah, फिर वो इखलास का वो पार्ट आ जाता है. ये हदीस जो तुमने यहाँ स्क्रीन में शेयर की है इसमें भी ऐसा कुछ मेंशन हुआ है, देखो. हाँ, सूरह काफिरून और सूरह इखलास दोनों साथ पढ़ा करते जोड़ा. थे. वही कल नादिया से भी किससे बात हो रही थी मेरी कि यूजुअली जैसे सफर में निकलने से पहले भी जो दुआएं पढ़ी जाती हैं और मगरिब की सुन्नत का भी बता रही थी नादिया कि उसमें भी वितर में फजर के भी ना, वितर में भी जो वितर में है, वितर में पहले आला है फिर काफिरून और फिर सूरह. यस यूजुअली साथ जैसे नफल और तहियतुल मस्जिद का भी यही हदीस है कि सूरह काफिरून सूरह इखलास. और जो मकाम इब्राहिम पे पढ़ते हैं उसमें पे एक जो है सूरह काफिरून है ना. एग्जैक्टली मकाम इब्राहिम की ही में भी यही है, दोनों ही है. इसमें यही मेंशन हुआ है ना, काफिरून और सूरह इखलास. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं. अच्छा, मुझे कुछ लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं इस क्वेश्चन के लिए. 3 मुझे इसकी मीनिंग बता दें. मेरे पास 7 है. What are the linguistic meanings of qadr? अर्शिया, मरियम. अर्शिया पहले अर्शिया का नाम है, फिर मरियम आई, मतलब इन सीक्वेंस आए हैं. ओके, अर्शिया बता दें. ये qadara, I think the one that comes down. The one that comes down. ये तो मेरे पास नहीं है. I don't know. My root words come. I'm trying to remember. Anything. Yeah, you're talking about what is the definition. Yeah, you're talking about the root word meaning. Definitions के linguistic meanings हैं. मेरे पास 7 different meanings हैं of qadr. जो कि नुमान अली खान ने explain किया था, तो he goes into everything. कुछ छोड़ा नहीं होगा. It's like the decree of Allah subhanahu wa ta'ala, something like that. You're talking. Okay. Yes. That's one. Okay. 6 और अदर्स से पूछे, मैं तब तक सोच के बताती हूँ. नेक्स्ट मरियम है लाइन में, मरियम असलम है. ओके. फिर उसके बाद मरियम साहिब है लाइन में, फिर निमरा भी है. तो लेट्स टेक मरियम. एक मीनिंग पावर का या उसकी कुदरत रखना जो होता है उसका भी है. पावर. और एक मीनिंग जो पहले से किस्मत लिख दी गई, जिसको आई थिंक प्रीडेस्टिनेशन कहते हैं, जो रूहें बनाने से भी जो पहले लिख दी गई थी वो. और अर्शिया ने जो कहा है वो उसका यही मतलब है ना. जी, डिक्री ऑफ अल्लाह. कुदरत हो गई और हो गई किस्मत, जैसे जिसको कहते हैं. और मर्जी आई थिंक अल्लाह ताला की, कदर ऑफ अल्लाह. वो इसी में आ जाएगा ना, जो कदर ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह ने कदर लिख दी. अच्छा, बिल्कुल. आई थिंक सो. इसमें अलग से नहीं लिखा. वैल्यू, आई थिंक वैल्यू, शब कदर. वैल्यू. वेरी गुड. यस. जी. टिंग 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 हो गया. I have 7. Then can I say this also? Qadir, from Qadir, the one who is able to. Yes. किसी चीज में कमी करना भी है उसका मतलब होता है. मगर मैंने वो आंसर खोल लिया. Yes. वो कदा नहीं आता. नहीं, कदा. She's right. This is in Surah Fajr. वक़दर अलैहि रिज़्क़हु. अच्छा. किसी चीज को तंग करना, किसी चीज को तंग. हाँ, ये है ना, constriction. Yes. ओके.
तो और लैलतुल कदर में कंस्ट्रक्शन इसलिए Rally हुआ, इसको हाँ। कहते हैं कि जैसे बहुत सारे हाँ, so many angels के इतने angels जल्दी से इतने इतने सारे हो सारे जाते हैं। डिसेंड होते हैं कि उनकी हाँ, कदर जगह कम हो जाती है. yes, yes, So yes, subhanallah, may Allah give us Laylatul Qadr this year आमीन, as well and सुभान many more to come. अल्लाह। आज दुआ में ही आमीन। शामिल करना तुम ये बात भी, लैलतुल इंशाल्लाह क़द्र की, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह. अच्छा फिर तो ये सब आप देख लें या मैं पढ़ूं? आप लोग देख लेंगे सारे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चली जाती हूँ. All the meanings. ठीक है. कुछ तो It's इसके good to बिल्कुल know. उर्दू से भी मिलते हैं, you know, मतलब ये उर्दू उर्दू में में भी लिखा हुआ है. इस्तेमाल होते हैं, हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मीनिंग भी जो है उर्दू में इस सेंस में इस्तेमाल होते हैं सारे के सारे. Except maybe qadr as in कंस्ट्रक्शन, yes, बिल्कुल. Next question. ये आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन आएगा जरूर, है ना? बिल्कुल आउट क्वेश्चन. अच्छा ये ये इसमें पेपर आउट हो गया मरियम था. अब आई डोंट नो किसने पहले हाथ में, मैंने दूसरों के हाथ लोअर नहीं किए थे. मरियम और निमरा का हाथ उठा हुआ है इसमें. दे हैव रेज्ड देयर हैंड्स. किसने पहले किया था? यार मैंने एक्चुअली देखा नहीं, शायद मरियम ही है. हाँ नहीं, अच्छा मरियम ही है, सही है. मरियम और अर्शिया का बाद में आया अभी. हाँ ओके मरियम, गो ऑन. चलो भाई मरियम. एक तो इसको दिल से मतलब इसको मानना कि मतलब इसके ऊपर बिलीफ रखना, फिर इसके अलावा के अल्लाह के अलावा वाकई किसी की फिर इबादत ना करना, कि मतलब इबादत का हक अदा करना. पर जो हमने वो जो 7 कंडीशंस ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करी है ना, उसकी ये क्वेश्चन है. उसको कंडीशंस ज़बान से ऑफ मानना, उसको अपने एक्शंस से मानना. कितनी कंडीशंस थी ये बताओ पहले. पहले ये बताओ कितनी थी. हाँ कितनी जो वो है ना ईमान के जो वो हैं, क्या कहना चाहिए, प्री रिक्विजिट्स कह लें, कि उसको मतलब पहले जाने, दिल से मतलब बिलीव करें उसके ऊपर, उसके बाद उसको जबान से भी कहें, उसके बाद उसको अपने अमाल से भी कहें. भाई ये बताओ पहले कितनी कंडीशंस थी, कितनी कंडीशंस थी. सॉरी शीमा, आई एम इंटरफेयरिंग. हां नहीं गो. Not sure वैसे 5 या 7. नहीं, I think Arshia, do you know? I think there were about 7-8 conditions ना, what you had discussed. You're हाँ जो मैंने डिस्कस करी है वो 7 करी है, बट 8 भी ठीक है और 9 भी ठीक है. कुछ स्कॉलर्स 9 भी कहते हैं, मगर हम 7 पे स्टिक करेंगे कि 7 की ही बात करते रहे हम लोग. तो कैन एनीवन नेम देम? अगर किसी ने नहीं बताया तो मैं बताऊंगी. गुड गर्ल्स फिजा. मैं बताऊं? नादिया बताओ. हाँ जी प्लीज. नादिया बताओ. Knowledge, ilm, yes, al-yaqeen, acceptance, third, and submission. फिर al-sidq कि आप उसको सच्चाई से कबूल करें, sincerity, इखलास और love. 7th. Very good. Very good. These are the 7 conditions that we should check ourselves against कि हम ये सारी conditions को fulfill कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, ज़बान से कहते हैं, तो हम इन conditions को भी fulfill करें. So again हमारे पास 9 minutes है. हाँ okay, माशाल्लाह. अच्छा बिया आ गई क्या? 1 मिनट में चेक करती हूँ. हाँ जी बेट आ गई. अच्छा ये क्विज के बाद फिर आप अपनी वो स्टोरी सुनाइएगा, ठीक है? Alright. किसी को पता है du'as of entering and leaving the house? बिल्कुल पता है. अच्छा ये बताती हूँ किसने हाथ उठाया है. निमरा. हाँ निमरा बताएं. 1 मिनट. निमरा. हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि. हेलो वालेकुम सलाम. जी निमरा बताएं. असल में जो हाथ है ना वो पिछले सवाल के लिए उठा. सॉरी. नहीं लेकिन अच्छा, मुझे मालूम है, मैं बताऊं? नहीं मुझे अच्छा पता निमरा when I leave the house I say Bismillah tawakkaltu ala Allah. I say this. I wonder. मैं भूल गया. I'm so sorry. और फिर मैं दाखिल होती हूँ तो उसकी तो अभी मुझे याद है, पर इस वक्त
मैं भूल गई। मैं सुनाऊं? कोई बात मैं नहीं। सुनाऊं? हाँ कौन कह रहा है? बिया बता रही है। बिया बताएं। चले बिया बताएं। वैसे मरियम का भी हाथ उठा हुआ है। चलिए बिया बताएं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। माशाल्लाह तबारकल्लाह। और एंटर होने की, घर में दाखिल होने की? वो कोई बिस्मिल्लाह ही पढ़ते हैं सिर्फ? नहीं नहीं बिस्मिल्लाह there is दुआ a है dua, भाई, there is a दुआ है। dua, मैंने अपने बेटे को याद कराई थी, मैंने भी याद की साथ में। जी मैंने भी बेटी को याद इसी कराई। तरह। may I? कौन क्या नाम बताएं भाई? अर्शिया। बिस्मिल्लाहि वल्लाह। अर्शिया से पहले मरियम का हाथ उठा हुआ है, क्या मरियम बताएंगी? ओके। मरियम असलम का हैंड रेज है, आमना का भी हैंड रेज है। मैंने एक्चुअली वही बिस्मिल्लाह तवक्कलतु वाली जो दुआ है मैंने उसी मैं समझी थी कि दोनों के लिए वही है। अच्छा। Can I try saying this? Hello. कौन है? Hello. ये मैं निम्रा। यहाँ निम्रा जी। हेलो। जी कौन कह रहा है? मैं बताऊं? मैं निम्रा। एक मिनट, अब क्यू में हमारे पास नेक्स्ट नेम जो था ना आमना का आ रहा है, तो शुड वी गिव हर अ चांस बिकॉज़ वी आर गोइंग। चलो हाँ लेट्स गिव आमना चांस। हाँ अंदर आने के बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अला रब्बिना तवक्कलना। हाँ माशाल्लाह आमीन। अच्छा ये मुझे भी यही याद है बिल्कुल, मगर इसमें एक एडिशन भी है जो कि इट्स फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स, बट आई विल एक्सेप्ट दिस एज करेक्ट। बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अला अल्लाहि रब्बना तवक्कलना। ठीक है, let's move on. What is the opposite of bir and what does it mean? एक मिनट। अर्शिया क्या इस क्वेश्चन के लिए हैंड रेज किया है या लास्ट के लिए था? अच्छा ओके। But I can try this. Opposite of there is shar. मुझे आवाज नहीं आई। कह रही है शर, ऑपोजिट ऑफ बेर इज शर। No. Is it? That's not the. No. नहीं। अच्छा अनीला का भी हाथ, अनीला। Okay. अनीला अनम्यूट करें। बताना है सही आ कहते हैं ना? बेर का नहीं, बेर का ऑपोजिट। No. It is similar meaning सही है, मगर जो उसका कुरान में जो बेर के साथ आता है और हदीस में that's मरियम असलम। I'm not sure, लेकिन वो इस्म यानी कि अलिफ सा और मीम इस्म जी माशाल्लाह गुनाह के लिए इस्तेमाल होता है। सही है। Yes, this is what. और भी है ना इस्म हुआ उद्वान। वही बिल्कुल। हाँ बिल्कुल वही इस्मी वाले उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अर्शिया, इसका जवाब किसने दिया था? अभी मरियम ने दिया था ना? No, but what next thing of the I didn't understand what was opposite of bir. Ithm, sin. गुनाह। हाँ ithm. Hamza, I remember. And mim. Ji, because the name Asim जो है, right? People keep na in Pak region में. Yes. So I remember reading. So it is supposed to be, if you pronounce it Asim, how? Because that's how we are non-Arabs, right? So alif se nikal jata hai. It is supposed to be with ain. Asim. Awesome. बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन से बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाता है ना अगर हम उसको सही प्रोनाउंस नहीं करें लेटर्स को। ओके कितनी देर रहती है? मेरे पास जो है ना 3 or 4 minutes, 3 minutes हैं। I think we should reconnect. अच्छा चलो बस 2 क्वेश्चंस रहते हैं and they're it will be a quick सभी है ना। Let's connect back everyone. ठीक है।